Hello everyone, myself Rastali. Very good morning. So today you are most welcome in this Target UPSC CSC Prelims 2020. Okay, under the GS Mentorship Program. So today we'll discuss the most important questions on the current affairs and contemporary issues. Today is the day 9. This program runs under the mentorship of me, Riyasat Ali. So let us start the discussing of the question, right? What you do first, pause the video, then find out your answer and then go for discussion, right? So let us start the discussion. I am really sorry for the last 2 days I could not make the questions, but आज मैंने आप लोग क्वेश्चन जो ज़्यादा बढ़ा के लेके आया हूँ. आज 8 क्वेश्चन है और कल परसों भी आई मीन इन कमिंग डेज भी आई विल ब्रिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सो दैट जो पीछे का जो लैग हुआ है उसको कवर कर लेंगे, राइट? सो क्वेश्चन वन इज दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टर्म सेक्युलरिज्म, right? So, statement one is that the term secularism was added to the preamble of the Constitution by 44th Constitutional Amendment, Amendment 1978, right? So, this statement is incorrect. All religion in our Constitution have equal status and support from the state. Of course, this statement is correct. The state cannot interfere in internal matter of the religion. देखो ये गलत है. कर सकता है इंडियन कौन सा, ये हमारा पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलरिज्म होता है. तो स्टेटमेंट सो क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द एबव इज आर इनकरेक्ट, राइट? ये सब ध्यान रखा करो. इनकरेक्ट लास्ट में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 1 and 3 आर इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी सी. देखो डिस्कस करते हैं. 42nd अमेंडमेंट के तहत आया था 1976 के तहत, राइट? द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द केस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है? इंडिया सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी asserts its political authority in the matter of personal law. The participation but the principal distance model, which on one hand respect the diversity, I mean article 25 to 28, and at the same time it empowers state to interfere in case of any discrimination in the name of religion, ठीक है? अगर कोई evil practices within religion चालू रहता है तो in that case our Indian government can interfere and can make the law, right? Next statement, article 29 and 30 in the constitution of the India seeks a principal distance between the minorities as well as majority to protect, preserve and propagate their cultural, linguistic, religious identity through establishment of cultural and educational institution, right? Next question. The question 2 is that in the context of India, which of the following activities can help in checking increasing unemployment? देखो ये बहुत परसिस्ट. अच्छा देखो पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया था सेकुलरिज्म पे. सेकुलरिज्म पिछले 1-1.5 साल से बहुत न्यूज में है, बहुत ज़्यादा न्यूज में, और अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी फाइल हुआ है उसको सेकुलर वर्ड हटाने के लिए, ठीक ना? इसलिए मैंने बनाया था. और अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग को पता ही है कितना न्यूज में है. चलो तो देखते हैं. स्टेटमेंट वन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. देखो स्टेटमेंट सही होगा ये. मोर असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल. देखो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर प्रमोट करेंगे तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट चेक, अनएम्प्लॉयमेंट का चेक होगा, ठीक है? इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन. देखो ये क्वेश्चन अभी आप सोचो, मैं बताता हूँ. द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन कोऑपरेटिव सेक्टर. देखो ये भी आंसर होगा, आप लोग सोचना, मॉडल आंसर भी पढ़ना. देखो कैपिटल फॉर्मेशन वाले में भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये भी स्टेटमेंट सही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? सो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर विल बी डी. ओके, देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन आप पढ़ लेना, मैं ये कैपिटल फॉर्मेशन का डिस्कस. रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज, accelerated. Capital formation should particularly encourage in the such activity which generate greater employment opportunity. Capital output ratio should kept low. अब देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि जितना कैपिटल लगाएं और आउटपुट, तो मतलब इसका डिफिनेशन ये होता है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम जितना कैपिटल लगाते हैं उसको कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं. तो अगर हमको इसकी कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रखना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हम कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल की मुझे इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट पर यूनिट कैपिटल हमारा जो है आउटपुट ज़्यादा होता है. जब यहाँ नीचे ज़्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, मान लो ऊपर 4 रहेगा और नीचे 6 रहेगा, तो क्या होगा, ये मतलब आपका पॉइंट में आएगा, राइट? अगर ये 8 कर देंगे तो और कम होगा. तो इसका मतलब इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, राइट? तो अगर इफिशियंसी बढ़ाएंगे और आउट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट? तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोऑपरेटिव वाला आप लोग तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं चलते हैं आगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ. देखो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत न्यूज में है, क्वेश्चन आ सकता है. विप भी बहुत न्यूज में है, कल परसों में आपको विप पे क्वेश्चन बना के दे दूंगा. तो स्टेटमेंट 1, अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल
of the constitution, the chairman and oblique speaker have final authority to decide the questions of disqualification of the member of house. Of course this statement is correct. It does not apply on the independence on an independent member who join political party after his election. देखो ये गलत है, अप्लाई होता है if a member of the house belongs to political party voluntarily give up his or her membership of a political party. of course इस पे अप्लाई होता है तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. इट डज नॉट अप्लाई ऑन ए नॉमिनेटेड मेंबर इफ ही सी ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ आफ्टर द इलेक्शन. 6 मंथ आफ्टर नहीं होता, 6 मंथ बिफोर था, विदिन 6 मंथ के अंदर को ज्वाइन करना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो आंसर आप विल बी बी. ओके, देखो ये बहुत न्यूज में है, आप लोग इसको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ठीक है. So, if an independent member who join the political party after his or her election, ठीक है ना, become disqualified under the 10th schedule या identification law, ठीक है. Statement next, a nominated member if he she join a political party 6 month after he her election will be disqualified. मतलब within 6 month के अंदर उसको ज्वाइन करना चाहिए, राइट. Question number 4, permafrost thawing is cause of concern for environmental scientists and governments. कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू परमाफ्रोस्ट. परमाफ्रोस्ट क्या होता है, राइट. स्टेटमेंट 1, परमाफ्रोस्ट एग्जिस्ट इन द पोलर रीजन ओनली. नहीं, देखो ये गलत है, हिमालयन रीजन में पाया जाता है और जितने भी हाईएस्ट हमारा अल्टीट्यूड वहाँ पाया जाता है पहाड़ों पे. द सेकेंड स्टेटमेंट, परमाफ्रोस्ट थाविंग कैन लीड टू मैसिव रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर. देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. परमाफ्रोस्ट थाविंग इज ए थ्रेट टू द होल ह्यूमिडिटी ऑन द प्लैनेट. देखो जल्दी तुम गलती मत कर देना, जनरली स्टेटमेंट 3 और सेकंड के लास्ट वर्ड में ही ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, आप फ्लो में आप गलती कर, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट. तो आपका स्टेटमेंट विल बी ओनली 2 करेक्ट होगा आंसर. देखो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन बनाया हूँ कि अभी आर्टिक ओशन के में ना आपको आर्टिक पोलर रीजन में नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा परमाफ्रोस्ट का न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न है और बहुत मैसिव लेवल पे, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन बनाया हूँ, राइट. परमाफ्रोस्ट ग्राउंड इज दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस आर बिलो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर. 2 साल तक अगर फ्रोजन रहेगा तभी उसको परमाफ्रोस्ट बोलेंगे, अदरवाइज दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस. इट इज डिफाइंड सोलली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, ठीक है. These changes also threaten survival of indigenous people as well as the Arctic animals. At lower latitude, permafrost found at the high lower latitude मतलब tropics areas में, right. High altitude located at the Alps and Tibetan plateau, ठीक है. When permafrost thaw, microbes start decomposing the carbon matters, releasing greenhouse gases like methane, carbon dioxide. ध्यान रखना आप लोग. Researchers have estimated that every 1 degree Celsius rise in temperature these grounds could release greenhouse gases to tune of 4 to 6 year of emission from the coal oil. मतलब 4 से 6 गुना जो कोल हम 4 साल में जो कंज्यूम करते हैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद 6 गुना के बराबर हमारा कार्बन रिलीज हो सकता है एटमॉस्फेयर में. इतना ज़्यादा डेंजरस है, राइट. क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जो केरला में कि गर्ल्स का जो लव मैरिज का इशूज था, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ गया था कि राइट टू मैरिड किस आर्टिकल में आता है, राइट. तो इसलिए इस बार जितने कई फंडामेंटल राइट पे बहुत ढेर सारे जजमेंट आए पिछले 1 साल से, इसको आप ध्यान से आप सारे रिवीजन कर लेना. इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया. राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. देखो ये सही है, अभी जून में इसका जजमेंट आया था NET के केस में, जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट और वहाँ के सारे पोलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए थे. स्टेटमेंट 2, राइट टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. देखो ध्यान रखो अंडर 25(1) के अंदर है कि नहीं, ठीक है. राइट टू नो इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22. देखो ये गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, राइट. तो अंडर आर्टिकल 22 नहीं है राइट टू नो, अंडर आर्टिकल 19 है और अंडर आर्टिकल 21 है, 2 में है. ध्यान रखना आप लोग, दोनों जगह है. 19 में कंफ्यूज मत होना, अभी जजमेंट इस पर कई बार आ चुका है, सेवरल दिसंबर में बहुत में न्यूज़ में था, राइट. और आप जब इसका आर्टिकल 19 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर भी है इसका, और मैं आपको डिटेल में अभी स्लाइड में डिस्कस करता हूँ. तो आंसर विल बी 2 ओनली, राइट, बी.
In recently, Supreme Court of the India has said the reservation of the seats provided to certain communities is not a fundamental right. In a significant ruling, Supreme Court on the Friday said that ये देखो सब न्यूज पेपर मैंने आर्टिकल बनाया हूँ, access to internet is a fundamental right under Article 19 of the Constitution and asked the Jammu Kashmir, देखो ये ठीक है. Question statement 3. The Constitution of India does not clearly provide right to information. However, apex court in the country held several cases on the right to information cases concerning with the Article 19 and Article 21 of the Indian Constitution, which state that the freedom of expression and speech and right to life, personal law and life respectively. In other words, we can say that right to information protect the very purpose of such articles 19 article 21 come under the part 3 of the constitution, which is fundamental right in the constitution. In this way we can say the right to information might be considered as the fundamental, might भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग टचेस द बॉर्डर ऑफ द पैलेस्टाइन. देखो फिलिस्तीन अभी न्यूज में था, वहाँ गूगल ने उसका वहाँ से मैप से उसका लोकेशन हटा दिया था मैप से, इसलिए न्यूज में है. तो देखो ध्यान रखना, इसको आप लोग मैप में जाकर देख लेना. देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टचेस द बाउंड्री ऑफ, मतलब तो देखो इजिप्ट टच करता है ऑफ कोर्स, मेडिटेरियन सी आप ये भी सही है, डेड सी भी करता है, आप ध्यान रखना गलती मत करना, जॉर्डन भी करता है, सऊदी अरबिया ये नहीं करते हैं, सीरिया नहीं करता है, तो आंसर विल बी ए, ठीक है. देखो फिलिस्तीन दो जगह, जो दो जोग्राफिकल लोकेशन है, एक गाजा स्ट्रिप है और एक वेस्ट बैंक है. तो देखो वेस्ट बैंक देखो जॉर्डन को करता है, और देखो डेड सी जो है देखो दोनों को बहुत टच करता है, ये ध्यान रखना आप लोग. और गाजा स्ट्रिप क्या करता है, तो मेडिटेरियन सी को, और यहाँ पे इजिप्ट को टच करता है. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टर्म थिरुकुरल. थिरुकुरल देखो मैं इसलिए क्वेश्चन को बनाया हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में 6 जगह इसका वर्ड ये यूज हुआ है, 6-7 जगह वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंस इसको ऐड किया है. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन द एथिक्स एंड मोरालिटी बिलोंग टू द संगम पीरियड, ठीक है ना. इट इज़ ए टाइप ऑफ मार्शल आर्ट बिलोंग टू द साउथ इंडिया, ठीक है. इट इज़ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन इन साउथ इंडिया, ठीक है. और नन ऑफ द अबव. तो देखो आंसर होगा ए, ये होगा. 6-7 जगह यूज हुआ है, इसको आप लोग याद कर लेना, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है. थिरुकुरल इज ए क्लासिक तमिल टेक्स्ट कंसिस्टिंग 1330 शॉर्ट कपुलेट इन 7 वर्ड्स ईच कुरल. सॉरी एक सेकेंड, हाँ. द टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू द 3 बुक्स, 3 बुक में है, इसको आप लोग पढ़ लेना पॉज करके. कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी, इट इज नोन एज द यूनिवर्सिटी एंड सेकुलर यूनिवर्सलिटी एंड द सेकुलर नेचर, ठीक है. इट्स अथॉरिटी ट्रेडिशनल, ये आप लोग पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है. मैंने मेन थीम बता दिया है. और देखो जो एक लाइन और वर्ड हुआ है इस थिरुकुरल से रिलेटेड, उसमें लिखा हुआ है कि इथिकल मीन्स ऑफ अर्निंग इकोनॉमी, मतलब अर्निंग मनी, ठीक है. इथिकल मीन्स आप अर्निंग मनी उस पर है. अच्छा आगे जाने से पहले एक चीज़ छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. अभी जो 2021 के लिए मैंने बैच चालू कर दिया है, कंप्रेहेंसिव जीएस प्लस ऐसे मेन मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर सीएससी 2021. आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लास्ट ईयर जो मैंने ट्रांस फाइज पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था, मैंने इसको रन किया था, उससे मच बेटर प्रोग्राम है, मच बेटर, उसमें फीचर ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिव प्रोग्राम है. जैसे लास्ट ईयर हम लोग क्या करते थे, मोर फोकस हम लोग करते थे राइटिंग स्किल थ्रू प्रीवियस ईयर राइटिंग. इसमें क्या प्रीवियस ईयर तो रहेगा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में आने वाला होगा, देखो विद इन एक साल का न्यूज में रहता है, वो भी क्वेश्चन होगा, और डायनेमिक वे में, मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन दोनों को मिला के अभी उसको आंसर लिखेंगे, और हर जितने भी आंसर लिखेंगे सब में ये अप्रोच रहेगा. इसके अलावा भी जितने भी बेसिक चीज जो वहाँ पे लैकुना था उसको मैंने इंप्रूव करके इसमें ऐड किया है. तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग चालू कर चुके हैं. आपको कोई भी फ्रेंड जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है, और बहुत कम पैसा, बहुत कम फीस में, लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा फीस कम है, ठीक है. और बहुत छोटा बैच है, बहुत मतलब 50 स्टूडेंट भी नहीं इस बैच के अंदर, ठीक है. तो आप लोग को जो भी है साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एनी लैंग्वेज का, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इस नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर देना या व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे 8090528260 पे, ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20, ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 इज दैट इट हैज रिसीव्ड हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन 2019-20. देखो स्टेटमेंट सही है, बहुत न्यूज में था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, और ऐसे न्यूज को जनरली स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं. स्टेटमेंट 2, फॉरेस्ट रिजर्व हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर. देखो ये स्टेटमेंट सही गलत है, तो ऑप्शन होगा ए, ठीक है.
अब लोग चलते हैं स्टेट में, ऐसे ही होगा। अब देखो 2016-17 में क्या था, $370 बिलियन आया था। 17-18 में क्या था, 424.5 आया था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन 2018-19 में क्या हुआ था, इंक्रीज कर गया था, 412.9 मतलब 412.9 आया था। और इस साल सबसे अभी तक का सबसे इंडिया में हाईएस्ट आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आने वाले दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, मतलब आपको जितने वीडियो लोग फॉलो करोगे, जितने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर चारों पेपर के लिए आपको मैं अप्रोच करूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको ये इस टॉपिक पे मैं आप लोग को ये अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग दे सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। मॉडर्न इंडियन इंस्टीट्यूट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सबसे अच्छे, अभी तक इतना अच्छा स्ट्रेटजी किसी ने आपको नहीं दिया होगा जितना आपको मैंने यहाँ इसमें दिया है। उसको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कितना मैंने इंपॉर्टेंस दिया और कितनी आसान से तरीके से आप मॉडर्न इंस्टीट्यूट कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना सो दैट यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स, और रेगुलर फॉलो करोगे। आई कैन एश्योर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा चैनल फॉलो करके आप यूपीएससी की चारों पेपर के जीएस की और ऐसे की तैयारी कर सकते हो अगले 6 महीने के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।